Hello guys, how are you all? So today we are going to have a wonderful conversation with Dr. Abhishek Pati, the person who started Side Dental Blogs and very successfully started his YouTube channel and flourishing with so many followers, right? I don't even know the numbers, it's so huge. So everything is going wonderful with his YouTube journey, and I know him from the start when he started his YouTube journey, because at that time itself I also started my Facebook journey and everything journey. He'll be joining us soon. He's busy with something right now, and so what we are going to talk about? We are going to talk about his life, about what was his struggles during BDS or during MDS, right? And how did he set that goal that I want to do MDS in this subject, and after that this would be my practice and this would be my life. He's very fond of traveling. If you have seen his traveling videos, also traveling vlogs, so uh, he's very fond of that also, right? So we are going to talk about his work life balance, and he's going to teach you amazing life lessons, because he have been through all. He'll be teaching you that why it is important to set a goal, why it is important to do MDS if you want to, and when you should do that, right? And how you should proceed to it, and how you should grow in dentistry and life. So he'll be joining us soon. Let people join in. I'm seeing already 12 people have been joined, and I know all of them almost personally also. So thank you so much guys for this response. और कोरोना से रिलेटेड बातें थोड़ी बात करेंगे सर से, कि वो उनकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, जब वो अपनी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस को अपने कर रहे हैं और किस तरीके से फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं. विद इन 5 मिनट्स विल बी जॉइनिंग अस. सो हमें भी पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और हमें कैसे लेके जानी है चीज़ें. I'm sure that you all must be knowing him personally, but if you don't know him, तो आप जाके देख सकते हैं YouTube पे साइड डेंटल व्लॉग्स खोल के, how big this platform is. He is talking to us. The most important thing is persistently. Every day is making videos. Just imagine a married person with responsibility on his shoulders, and he's not getting something out of it. There is a hype. जो मुझे भी लोग कहते हैं कि सर आपको फेसबुक से कितना पैसा मिलता है, आपको इंस्टाग्राम से कितना पैसा मिलता है. अरे भाई, कोई पैसा नहीं मिलता, राइट? वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, राइट? उनकी ये परसिस्टेंस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मुझसे नहीं होता. I cannot make videos every day, but he is very consistent. If you'll see his videos, बहुत persistently उनके YouTube पे everyday video है, which he makes shoots after the clinic. So इतना ज़्यादा stress लेके patients करना, और उसके बाद टीचिंग भी करना, बिकॉज इज स्टाफ इन कॉलेज ऑल्सो, और उसके साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना, और बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ईजी लैंग्वेज में वीडियोस बनाना जो आपके लिए हेल्पफुल हो, मेरे लिए हेल्पफुल हो, हम सबके लिए हेल्पफुल हो. इट्स ए जर्नी ऑल टुगेदर. सो आज आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें उनसे, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें, दिस ऑल विल बी रिकॉर्ड ऑल्सो, तो आप पूछ सकते हैं, राइट? आप जान सकते हैं उनकी जर्नी के बारे में. जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे इट विल बी ऑन द स्क्रीन, एंड मे बी he'll see it, or I'll let him know that this is the question, प्लीज़ उसका आप आंसर कीजिए. सो जब तक he is not coming with us, maybe 1-2 minutes, whatever you want to ask you can tell me, right? तो मैं उसको नोट डाउन कर सकता हूँ, आपके बिहाफ पे पूछ सकता हूँ कि सर दिस वाज द क्वेश्चन फॉर यू. सो वी विल बी स्टार्टिंग with a very important question, that what was the reason. बहुत लोग इस बात को लेके चिंतित हैं कि सर, क्योंकि हमारा ग्रेड सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि ओके सर इज हियर, सो लेट मी get him to yes, all right. So I'm not a tech savvy person, I don't know how to. Yes. हेलो, Okay. ऑडिबल है? Yes sir, बिल्कुल sir, clearly, perfectly. We're all waiting for you. People are joining in. हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड नाइट हो गया वैसे अभी. बिल्कुल सर, बिल्कुल. Thank you so much for. So I have updated my Insta also.
कि आई एम लाइव ऑन दिस चैनल, Amazing, amazing. Dr. Sagar Chaudhary, and I hope you all are doing good and everybody is fine and everybody is hale and hearty. It So I is was planning this for a long time. मतलब मन में था, अचानक से हो गया ये एक dream come true, sir, for me. Dream come true that, अरे working with ड्रीम you. कम ट्रू क्या है ये तो नॉर्मल. We'll just talk over like what was my situation during my college days. तो Hmm. बहुत साल भी हो गए Yes, इस yes, चीज को, बहुत साल हो गए, 20 साल तक थिंग्स वर डिफरेंट yes. एंड अभी चीजें बहुत ही डिफरेंट हैं Right, sir. रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट, रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री, रिगार्डिंग द कॉलेज इटसेल्फ. Right, एंड sir. अभी तो सिचुएशन बहुत ही कोविड की वजह से थोड़ी सी डाउन है, Yes, sir. लेकिन सून दिस सिचुएशन लाइक दिस इज गोना गेट ओवर बाय नेक्स्ट 8 to 9 months. I think when everybody gets vaccinated, Hmm. people will be more safer Yes, sir. because the incidence of deaths and incidence of COVID related lung failure and other GIT symptoms is lesser after taking the vaccination. यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली. सर, आपको मैं इन लोगों से बात जब बीच में कर रहा था, जब तक आपने ज्वाइन नहीं किया, यही कर रहा था कि वी विल बी डिस्कसिंग नॉट ओनली अबाउट डेंटिस्ट्री बट आपका ओन नजरिया लाइफ का, जिससे वी लर्न सो मच बिकॉज वी सी यू ट्रैवलिंग ऑल्सो. सो आप बीडीएस की तरफ जाना या एमडीएस की तरफ जाना, उस दौरान आपकी अपनी स्ट्रगल्स थी, आपके अपना लाइफ के लेसन्स थे जो आप हमसे शेयर करते हैं. तो व्हाट वाज दोज लेसन्स जो आपको लगता है कि ड्यूरिंग द बीडीएस और एमडीएस हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए, ताकि वो इन चीजों को बेटर वे में कर सकें, हमसे बेटर कर सकें बेसिकली. बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी किसी चीज को कुछ भी, जैसे कि हम जैसे कि बचपन में हम बच्चे होते हैं तब हमको बोला जाता है कि तू ये कर ले तो फिर तेरे को ये मिल जाएगा. Right, sir. ठीक है, मतलब वी आर ऑलवेज गिवन सम काइंड ऑफ गोल. यस. सो व्हेन वी गेट ओल्डर और एल्डर, सो हमें हमेशा हर रोज शॉर्ट टर्म गोल्स मिलते हैं, हर रोज. जैसे मम्मी ने बोला अरे रूम क्लीन कर, तो आपका कभी संडे होता है मन नहीं करता, तो फिर आप बैठे रहते हो ऐसे, यू जस्ट वेस्ट टाइम, राइट. एंड सडनली एक अंदर में एक मोटिवेशन आते है, यार पहले कर लो काम, उसके बाद जो एंजॉय करना है करेंगे, राइट. Yes, सो yes. वी टेक अराउंड 2 hours, we clean the room and then we sit back again. So that is a, if so how much satisfied we feel when we see a clean room, right? Or anything which we were like, अब को कार भी धोनी है या फिर बाइक धोनी है, तो कितना अंदर से सेटिस्फाइड लगता है वो शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट अकम्प्लिश करने के बाद. डेफिनेटली सर. Along with short term goals, you should not have too much wide view into the future. That what I am telling, because first year में मुझे लड़के पूछते हैं, people they ask me, sir MDS की प्रिपरेशन कैसे करनी है, they ask me these kind of questions, कौन सी ब्रांच में MDS करी, which is not required. Yes. Your short term goal is right now you focus your career in first year, whatever subjects are there in first year BDS, second year BDS. Amazing advice. Your main goal in first year should be not like doing MDS. Your main goal in first year should be, or second year, any year, कि जो भी year में जो किताबें हैं, whatever books are there, you should read them properly. You should try to get good marks, and whatever practical is there, you have to clean. Along with that, you have to maintain a balance. Yes. Long term goal, you have a vision. Yeah, you should have a vision instead of a goal. Right. Vision का मतलब कि हाँ, मैं जहाँ पे रहूंगा वहाँ पे मैं अच्छी प्रैक्टिस करूंगा, and I'll help poor people. I will help also everyone. Like whatever be the situation, I'll open my clinic. So you have to have a vision. ऐसा नहीं कि मैं MDS करूंगा ओरल इस सब्जेक्ट में तो मुझे इतना पैसा मिलेगा हर महीने का. Right. That is a wrong vision, basically wrong goal. So you should have a long term vision instead of a long term goal. Amazing. Right. So my vision when I was doing my BDS, so we maximum people are into BDS because I didn't get into MBBS. And at that time I will also say कि मैंने जो BDS किया है उसमें थोड़े से पैसे दिए गए थे. Some amount of donation was there and some basically private college examination type का हुआ था. उसमें I had to pay less donation compared to now. Right, sir. So studying from a private college and cracking all India 127th rank, it was difficult for me, but it is possible. Yes. Because I had a vision in first year. No, my parents have spent so much of money. I need to show something that I'm worth it. Amazing. Something there is some gravity and some worth. Wonderful. So that's why I didn't study MCQs from the very first year. I started my journey in first year like a normal student. I also was not able to make cubes
and I also got frustrated like other people. Yes. कि अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैंने इतना सोचा था, I had so many expectations from this course, I am not getting it, and this thing is so difficult. Yes. So let me tell you one thing, like when I was in class 12th, I was a good student till class 10, but 11, 12, due to some circumstances in my family, I could not study properly. So that's why I could not clear the entrance. I tried, but I could not clear it. So after joining the BDS, after spending so much of money and seeing my parents suffer so much because of like paying such a huge amount of money during that time was like 2001 or 2, I think. So that time it was like I felt like, okay, no, I should make this money some value to my family. Right. Slowly the course started on the very first year, and at that time, one good thing was that mobile phone was not there. Okay. So whatever interaction we had during our time, we had with our friends. So mobile came in third year only, and before that, we know only one or two guys had mobile, like, and we used to call our parents from that phone also. There were STD booths at that time. So Right. things were not flashy at that time, and there was less amount of distraction compared to now, Right. because now there is so much amount of distraction, but there is a lot of information also flowing in the market, right? So that's how the idea of the YouTube channel came into the light, because one day one of the students of my college, they came to me and they asked me, sir, I want to open one clinic, क्या करूं, कहां से पाइप लाऊं, क्या लाऊं, एसी क्या लाऊं, रूम कितना बड़ा होना चाहिए. Then I thought of why should I, the same doubt many people must be having. So I made a video with the help of an intern. Yes. My first video was like how to make a clinic, right? So the dental clinic design I had made, and that video went viral. And after that, I started making small videos about the small things which you need in your clinic, Yes. like autoclave, different kind of instruments, and what are the techniques of RCT. So I tried some videos upon diseases as well, like case discussions and radiographic discussions, then radiographic techniques. So in the end, I felt like, okay, the same thing I am taking in the college. I am teaching the students morning 8 to 9 class, 9 to 10 class. Same thing I can just, if I put a social platform, so without money, without paying any fees, many people will be getting some kind of benefit. Definitely. Because people are not ready to help nowadays. Yes. It's, in dentistry, you'll be seeing in the same city, if your even your brother or your elder relative is, they won't tell you anything. Definitely. Because of maybe competition or. So that is why dentistry has degraded in India. Basically, that is the main reason. Yes. That is the thing. Right. So the thing is कि आपने जो चीज करी वो बहुत कम लोग सोच पाते हैं. I don't know what is the insecurity in it. That if I will tell the people that how to start a practice, तो हर किसी को ये लगता है कि मैं बता दूंगा तो मेरी नहीं चलेगी. I don't know what is this mentality, but ऐसा माइंड में है. अभी मैं एक क्वेश्चन भी पढ़ रहा था और मेरा भी मन था कि मैं आपसे ये चीज पूछूं. जैसे आपने अपना BDS का बहुत अच्छा गोल सेटिंग बताया कि ओके, गोल सेटिंग शुड बी ऑफ स्मॉल टाइम एंड विजन शुड बी लॉन्ग टर्म थिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल लेसन टू लर्न. इंटर्नशिप में जब आ जाते हैं बच्चे, आपके पास बहुत आते होंगे. अभी एक क्वेश्चन में पढ़ रहा था कि इंटर्न्स को जब नीट के बारे में माइंड में आता है कि अब इंटर्नशिप भी करनी है और नीट भी. अब आपका कहना यह है कि पहले इंटर्नशिप पे ध्यान देके काम सीख लो, बट अगर कोई उस बीच में नीट के बारे में सोचना चाहता है तो हाउ शुड ही और शी प्रोसीड, मतलब उस वक्त पे एटलीस्ट क्या क्या सोचा जा सकता है? देखो, मैं अपना एग्जांपल, मैंने जो किया वो मैं बताता हूँ. सो व्हाट when I decided to do MDS, I was studying in the library. I went to buy issue some book in third year, and I saw one of my seniors. I have told in my Instagram stories also, videos earlier, one of my senior, he was a South Indian, and he was studying a different book which I had never seen. So he was only ticking answers. He was doing some MCQ book, and at that time not many MCQ books were there during our time. So and being an intern, he was studying a book of first year. So I was I didn't know about MDS at that time. I forgot to tell you कि MDS बोल के कुछ होता है. BDS के बाद जानता था, लेकिन I didn't know like कि कुछ एग्जाम होता है and all. थर्ड ईयर तक मुझे ये पता ही नहीं था. थर्ड ईयर में जब लाइब्रेरी गया, then I asked him, sir, ये आप क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर? Then he said, I have my exam, so I am studying. So after the exam, I asked him, sir, exam is over? बोले, no, I have to give entrance examination for MDS. Then तब मेरा माथा ठनका कि सर क्या है ये, मतलब. Then I got an idea कि there is one MDS
then you have to give an exam, and you can beat professors and teachers, and you can do a specific branch, because at that time that was the beginning of third year. Right. So I had just finished my second year. So that is a thing ki, that MDS preparation thing ki, I have to study. But I didn't start my preparation during that time. I started my preparation after writing my final year exam. Oh, After just writing the final year exam, right. I finished it off, and I went to a library where I researched a lot regarding, okay, this is the MCQ books I saw. I saw what all questions are coming. I just saw, I didn't read. I just saw what are the books are there. So I thought, okay, let not, why should I waste time? I started reading from first year all the books again. So haphazardly, I studied for 3 to 4 months. Then so when you get the hang of it, लाइक कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है 10-12 घंटे, तभी जाके वो आइडिया आएगा आपको, वो जोश आएगा, वो एनर्जी आएगा, वो जील आएगा पढ़ने का. Because it's not easy to study after during that internship when everybody is enjoying and your entire college is making Yes. enjoying life because of all there is no exam and you're only working and then you're free. So and people were asking me, यार तू अभी लाइब्रेरी क्यों जाता है, अभी तो एग्जाम खत्म हुआ. So I only used to go for 3 to 4 hours initially, and I used to see what others are studying, and I used to ask MBBS students in that library ki, what you are studying, how is the pattern of questions coming. So slowly I came into the hang of it. Okay, these are the books I have to study, and because at that time there was no YouTube. There was YouTube, and there was no like YouTube channel who is guiding, or there was no Instagram, no Facebook. And at that time there was Orkut, or one more thing was there, नहीं क्या था इसको याद नहीं आ रहा मुझे. Orkut.com. Orkut was there, yes. I remember Yes, Orkut was there, and I was very active on Orkut, and we used to talk in Yahoo Mail, Yahoo, all these things were there, and we have to go to internet cafe to do all those things. Right? Suppose if I don't know the meaning of Aedes aegypti mosquito, I can just write the Google and it will come what is Aedes aegypti. But at that time, I have to search inside the book where is that mosquito written, and then I have to read the entire thing. Yes. So that smartphone was not there, and initially when I started studying, then MCQs flowed inside. मतलब all my seniors told कि यहाँ से MCQ पढ़, वहाँ से पढ़, getting books from Delhi and all. So that was a like very old period during that. So I started my preparation basically in 2008 के एकदम स्टार्टिंग से फाइनल ईयर जैसे मेरा खत्म होता है, एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड स्लोली. सो यू हैव टू ड्यूरिंग एन इंटर्नशिप, सपोज यू गो टू द कॉलेज, यू सी वन पेशेंट. सो आई यूज्ड टू कैरी माय बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग इन द कॉलेज इटसेल्फ. सब लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा. सो कॉलेज में क्या, यू यूजुअली टेंड टू चैट विद अदर पीपल, गप्पे मारने शुरू करते. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं ग्रुप में क्वेश्चन पूछता था, बता इसका आंसर क्या होगा. ओके. तो एटलीस्ट दिन में तुम अकेले पढ़ते तो उसका तुम 200 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन तुम अगर ग्रुप में पढ़ोगे तो तुम 50 क्वेश्चन कर पाओगे. बीच में बातें करोगे, बीच में इधर उधर देखोगे, खाने जाओगे, बट वो 50 क्वेश्चन तो पढ़ोगे और वो तुमको याद रहेंगे डिस्कशन करके पढ़ोगे तो. सो आफ्टर कॉलेज आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी फॉर 5 to 6 hours. ऐसे ही पूरा इंटर्नशिप मेरा चला. देन आफ्टर इंटर्नशिप आई टोटली गॉट डिवोटेड इनटू स्टडीज. राइट सर, जैसे आपने रैंक अचीव करी, वो पेशेंस रखना, और वी कैन आई पर्सनली नो कि आप परसिस्टेंटली, आई फॉलो यू, कि आप साइंग डेंटल ब्लॉग्स पे लगातार यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं एवरी डे, ऑल्दो यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, पेशेंट भी देखने हैं, टीचिंग भी करनी है, यू नो, स्टिल आफ्टर थक हार के भी आपकी रात में एक वीडियो आएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे टॉपिक जैसे आप बता रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज नोबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी एल्स इज टीचिंग दैट थिंग. अगर हम जिस भी प्रैक्टिस मैनेजमेंट के लेक्चर में जो मैंने अटेंड किया आज तक, ऑल दे डू इज दे विल टॉक अबाउट देयर प्रैक्टिस, कि उनकी प्रैक्टिस कितनी महान है, बट दे विल नॉट टेल यू उन्होंने वो महानता अचीव करने में कितना समय लगाया और कितनी पेशेंस लगाई, कितना टाइम लगाया. तो आपके जैसे चैनल के लिए परसिस्टेंसी आपकी ग्रोथ थी, वो पेशेंस रखना और वो हिम्मत रखना कि रोज एक डालनी है, वो एनर्जी रखना. पीपल वांट टू नो दिस व्हाई, बिकॉज कई लोगों के मेरे से क्वेश्चन थे कि सर पीजी के बारे में हम सर से पूछना चाहते हैं कि सर ने वो पीजी के लिए वो हिम्मत, जैसे आपने बताया कि आई वाज वेरी एनर्जेटिक टू इट, कि ओके करना है तो करना है. तो कई लोग क्या है कि ऑप्शन में चलते हैं कि ये ब्रांच वरना नहीं मिली तो ये ब्रांच, ये कॉलेज ये नहीं मिला तो ये कॉलेज. तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट, और वी शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद प्लान बी.
सो मैं थोड़ा सा अपना एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल कि सर। बेसिकली मुझे पीजी करना था। मुझे पता ही नहीं था मुझे किसमें पीजी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ, आई वाज कंफ्यूज। राइट। पहले मैंने सोचा, मुझे बच्चे अच्छे लगते थे तो मुझे लगा था मुझे पीडो करना चाहिए। अमेजिंग। ठीक है, आई वाज नॉट अवेयर। हम्म। लेकिन इन द लॉन्ग रन, जैसे अभी तक भी मुझे कुछ कुछ काम अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे रूट कैनल करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। और मुझे प्रोस्तो का काम भी बहुत अच्छा लगता है। राइट। तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे प्रोस्टोडोंटिस्ट बनना चाहिए था या एंडोडोंटिस्ट बनना चाहिए था। अब देखो, इतने दिन मैं काम किया लेकिन मुझे ऑर्थोडोंटिक्स अच्छा नहीं लगता है उतना। हम्म। आई एम नॉट दैट मच इनटू ऑर्थोडोंटिक्स, या फिर मुझे ऑर्थो का काम उतना पसंद नहीं है, तो मेरी वाइफ करती है वो। अमेजिंग। तो पहले से ही वो, तुम जब काम करोगे तभी तुमको पता चलेगा कि तुमको किस चीज में तुमको मतलब कि अच्छा लगता है, किस चीज में इंटरेस्ट है। हम्म। तो वही एमडीएस ब्रांच चूज करो जो आपको दिल से फील हो कि मुझे ये अच्छी लगती है, भले ही वो ओरल पैथोलॉजी क्यों ना हो। यस। 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 ठीक है, राइट। राइट। क्योंकि आप आपका मन नहीं होगा और आप उसको कर लोगे, हम्म। तो काफी लोग ऐसे फंस जाते हैं कि अरे यार इसमें क्यों मैंने एमडीएस किया। अब देखो, ओरल मेडिसिन है। राइट। ओरल मेडिसिन में आई डील विद, जब मैंने एडमिशन लिया तो एट दैट टाइम आई हैड नोबडी टू गाइड, सो आई जस्ट आस्क्ड कॉल्ड माय फादर कि पापा मुझे प्रोस्तो भी मिल रही थी, बाय द वे। हम्म। मुझे प्रोस्तो मिल रही थी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोट्टायम में, ओके। और मुझे ओरल मेडिसिन मिल रही थी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बैंगलोर में। तो ओके। एट दैट टाइम माय फादर सेड कि दिट वाज अ बिग डिसीजन टू मेक, बिकॉज आपको एक जिफी में डिसीजन लेना होता है, क्योंकि राइट। वो टीवी में आ रहा होता है कौन सी कॉलेज कौन सा खाली है। तो फिर अम, मैंने सोचा प्रोस्तो का काम तो मुझे आता ही है, ओरल मेडिसिन मुझे नहीं आता है। ओरल हम्म। कैविटिकल लीजन्स ये कहाँ से मैं देखूंगा। सही बात है, तब बिल्कुल मेरे सही बात। फादर ने बोला, टेक टेक ओरल मेडिसिन, इट्स अ वेरी न्यू ब्रांच एंड हम्म। श्योरली इट्स गोना शाइन, एंड along with that there is radiology, so you just take this branch, don't think anything else. So मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैंने पापा ने जो बोला, और थोड़ा बहुत मेरा भी मन था ओरल मेडिसिन लेने का, क्योंकि और दूसरी ब्रांच नहीं मिल रही थी मुझे। राइट सर। इफ आई वुड हैव गॉट इनटू सर्जरी, बिकॉज आल्सो आई वाज इंटरेस्टेड। हम्म। उस टाइम पे मुझे सर्जरी नहीं मिली, क्योंकि सर्जरी बहुत पहले ही निकल जाती है गवर्नमेंट सीट में। राइट सर। राइट। टॉप 100 रैंक में ही, 105 रैंक में ही निकल जाती है सर्जरी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस। राइट। तो मैंने ये चूज किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आई एम डूइंग दिस ब्रांच, बिकॉज दिस इज स्पेशल ब्रांच। यस। Because everybody asks you what is the, and this is the branch which has given me so much patience. They have given me so many, like I am able to talk lectures on this topic, because there is no one to actually take lectures on disease of the tongue, यस। and it's very rare actually. Even डेफिनेटली। people don't understand कि माउथ में अगर अल्सर हो गया तो किसको जाके दिखाएं, ईएनटी को दिखाएं या बिल्कुल। डेंटिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल। इवन डेंटिस्ट, they also don't know, because ओरल मेडिसिन हम कितना पढ़ते हैं आप मुझे बताओ। फाइनल ईयर में हम एक जस्ट छोटी सी किताब उठा के पास हो जाते हैं, बिल्कुल सर। एंड इट्स अ वेरी डीप, बिल्कुल डीप सब्जेक्ट है ये। इसमें डेफिनेटली। बहुत कुछ है। डेफिनेटली सर, वो चीज मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बिकॉज आई एम द कल्प्रिट जो हियर। दिल से फील हो वही ब्रांच में एमडीएस करो, राइट। बाकी सब चीज भूल जाओ, वो अपने आप शाइन करोगे। अगर आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है, लोग बोलते हैं कि यार सर्जरी में स्ट्रगल है, बहुत है, आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, पैसे नहीं है। तो राइट। दैट इज, वो मत देखो कि यार किस में पैसा है किस में नहीं है। पैसा झक मार के तुम्हारे पास आएगा, अगर तुम अच्छे से काम करोगे, मन लगा के आप सब चीज करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। भले ही दूसरे से 1-2 साल ज्यादा लग जाएंगे आपको, लेकिन आप शाइन करोगे ही करोगे। तो डेफिनेटली। जिसमें इंटरेस्ट है उसी में एमडीएस करो। मैंने मैं ये सबको चीज यही बोलता हूँ एडवाइस। पर्सनली देखी, जैसे आप ओमडीआर के लिए बता रहे हैं, ओल्ड मेडिसिन में आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट थिंग्स। मैं आपसे भी डिस्कशन कर सकता हूँ, मैं बुला सकता हूँ किसी को भी, बट पर्सनली खुद मुझे नहीं पता होती चीजें बहुत सारी। और जब ये भी मैंने देखा है कि कई लोग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को जस्ट इसलिए ऑप्शन में डाल रहे हैं बिकॉज मनी कम लग जाए। जैसे ओरल पैथोलॉजी की बहुत अच्छा फ्यूचर है आउटसाइड इंडिया, पीपल आर डूइंग इट हम्म। एंड देन हम्म। प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री, दैट इज ओके। बट उस ओरल पैथोलॉजी को फिर एक पीजी की तरह बस वो सर्टिफिकेट लटका रहता है। ऐसा मैंने बहुत देखा हम्म। है। वो तो होता ही है। राइट, सो सॉरी। सो ऐसा मैंने बहुत होते हुए देखा है। तो आपकी एडवाइस ऐसे लोगों के लिए क्या रहेगी? जैसे आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि जो आपको पसंद है उस ब्रांच में आप एमडीएस करें, और देन प्रोसीड, उस तरफ प्रोसीड करें, चाहे 2 साल ज्यादा लग जाए। ठीक है, तो कई लोग जेंडर बेस्ड चीजें भी देखते हैं, मैंने देखा कि पीडो में। यस एग्जैक्टली, यही मैं बोलने वाला था अभी तुमको। राइट। अभी मैं तुमको यही बात बोला, तुम बोल दो, तुम क्या बोल रहे थे नो नो बोलो। सर, प्लीज कंटिन्यू, यही मैं जानना नहीं चाह नहीं, रहा हूँ। अब जेंडर बेस वाली पे तुम बोलो क्या बोल रहे थे जेंडर तुम। बेस में सर, जैसे मैंने देखा है कि फीमेल्स बहुत जल्दी इस बात के लिए रेडी नहीं रहती दैट दे विल गो फॉर ओरल सर्जरी,
because they'll feel कि यार I have to go from one place to another, ठीक है, I don't want this thing happening to me. I don't know why. ठीक है, for example, my wife is very interested in oral surgery. ठीक है, she is very interested in going from clinic to clinic and doing the surgeries. But काफी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये बात एग्री नहीं करी. They are ready to do pedo. मे बी थोड़ा जेंडर बेस्ड चीज आ जाती है कि सॉफ्टनेस ज्यादा रहेगी. इजी तो नहीं बोलूंगा, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रांच एज ऑल आर, बट स्टिल जेंडर बेस्ड चीज बहुत हो जाती है. और ये चीज भी बहुत हो जाती See, है कि everything what I told, gender base is there, but there is a mentality in Indian population कि लड़कियां दांत नहीं निकाल सकती हैं. राइट. So that is a very wrong thing, which my wife, your wife, everybody who are female dentists, there are many dentists who हम लोग 2 महीने का 3-4 लाख अकेले कमाते हैं प्रैक्टिस करके उड़ीसा में. बिल्कुल सर, बिल्कुल. उड़ीसा में एक सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मेरी जूनियर, वो इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं. इतने पेशेंट्स, फीमेल्स अकेले, ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी सब अकेले करती हैं. तो मेन है आपका कितना इंटरेस्ट है आपकी फील्ड की तरफ, ना कोई सिर्फ ब्रांच. इट्स टोटल इन टोटो हाउ यू फील, like how you are as a dentist and how you have studied your entire BDS and done practical work. That all depends upon this. राइट. ऐसा नहीं कि अब लड़की हो तो ये नहीं कर पाओगे, अब लड़की हो तो स्पेस में जा रहे हैं लोग. राइट. डेंटिस्ट्री तो क्या छोटी सी चीज है. डेफिनेटली सर. जैसे मैंने भी स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, आपने स्टार्ट किया. मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कई लोग ऐसे भी हैं और डेंटिस्ट्री में भी ऐसे ही हैं जो आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव बात बोलेंगे और हर वीडियो पे अनलाइक जरूर पहुंचेगा. ठीक है, मुझे ऐसी बातें तक सुनने को मिली हैं कि आप एक गलत हाइप फैला रहे हो अबाउट डेंटिस्ट्री. आपकी वजह से लोग डेंटिस्ट्री में जा रहे हैं, बट जब बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि सैचुरेशन है एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, आपने ऐसी बातों का आंसर करी हैं अपनी वीडियोस में अबाउट सैचुरेशन एंड एवरीथिंग, पॉपुलेशन से रिलेटेड लिंक करके. बट स्टिल आपका इस चीज के ऊपर कैसे आप हैंडल करते हैं? आपको भी लोगों ने थोड़ी बहुत नेगेटिव बात बोली होगी कि जब आप प्राइवेट कॉलेज से यूजी करते हैं तो पीजी के लिए इतने आराम से आपको एक्साइट नहीं करते सीनियर्स, इतना आपको इंस्पायर नहीं करते. आपको चूज करना पड़ता है कि किन के बीच में बैठना जो सच में आपको भी इंस्पायर करें और खुद को भी इंस्पायर करें टू गेट टू दैट पॉइंट. तो मुझसे कोई पूछता है पर्सनली कि सर मुझे ओएमडीआर में एमडीएस करना है, तो आई सजेस्ट योर नेम कि सर से पूछो, क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर एडवाइस सुनील गावस्कर से लेगा, ठीक है, शाहरुख खान से नहीं लेगा. जिसने जो चीज अचीव करी है आप उसके पास पहुंचोगे. राइट. आपको प्रैक्टिस करनी है, आप मुझसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हो जो मैं जानता हूँ, बट आपको एमडीआर करना है आप सर से पूछो, या आपको प्रोस्तो करना है तो आई विल टेल द नेम ऑफ एनी पर्सन हु आई नो हु हैव अचीव्ड दिस थिंग. तो के हिसाब से हाउ डू यू देखो, नेगेटिविटी को डील कौन करते हैं, कौन क्रिएट करता है नेगेटिविटी? आइदर अ पर्सन ईदर हु हैज लेफ्ट डेंटिस्ट्री or who has zero interest in dentistry. Yes. Or the guy who was not interested in BDS just because of his parents, he's doing BDS and he's not interested at all and he's going to leave dentistry. तो 100% में only 4 to 5% ही ऐसे लोग हैं जो इस टाइप का नेगेटिविटी फैलाते हैं. तो बेटर है कि उनको ना सुनो और अपने पाथ पे चलते रहो. क्योंकि मेरे कॉलेज में, मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मेरे जो अभी जो मेरे क्लिनिक में काम करता है डॉक्टर, ही इज अ जूनियर डॉक्टर. उसने ज्वाइन किया मेरे क्लिनिक में 2000. उसको मतलब उसने नॉर्मल बीडीएस कोर्स किया एंड जब उसका इंटर्नशिप का टाइम आया देन कोविड के. सो हिज एंटायर बैच में they don't know any work actually because of the COVID, and next year भी COVID हो गया, मैक्सिमम क्लिनिक्स बंद रहे हैं और लॉकडाउन्स were all there. और how come my doctor who is there, आज उसने 2 ऑब्जर्वेशन की क्लिनिक में, एक एक्सट्रैक्शन किया. वो कैसे किया उसने फिर? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था. वो मेरे क्लिनिक रेगुलर आया, डिस्पाइट एवरीथिंग ऑल ऑड्स he came and learned work. तो उसने काम सीखा. Now he is so much expertise that he can open his own clinic. He's just searching for a place. After he gets a place, he'll open his clinic. तो उसने कैसे किया? 1 साल में, 2019 में उसका फाइनल ईयर खत्म हुआ, अभी 21 है, 2 साल होने को आ रहे हैं. तो इट्स ऑल अपॉन योर इंटरेस्ट. अभी पेशेंट्स, उसके भी खुद के पेशेंट मेरे क्लिनिक में उसके पेशेंट बेस बन गए हैं. वो लोग बोलते हैं कि सर आप तो सुबह रहते नहीं है, आप कॉलेज जाते हैं, हम उनसे करा सकते हैं. तो उतना बेस बनाने के लिए 1-2 साल में उतना, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपके साथ भी वैसा होगा.
सर पर यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ इंटर। नेगेटिविटी तो कोई नेगेटिविटी की तो वैसे ही न्यूज में हर रोज दिखा ही रहे हैं, बिल्कुल कितना लोग डेथ बिल्कुल हो रहे हैं कोरोना की वजह से। तो बिल्कुल जितना दूर हो सके नेगेटिविटी से रहो। ऐसे लोग हजारों मिलेंगे आपकी लाइफ में जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, इधर उधर की बातें बोलेंगे। तो अगर आप उसको हर चीज को अपने मन के अंदर लोगे हम्म तो फिर आप खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना आप इतना बढ़ रहे थे आपका लेवल डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा वही। डिमोटिवेट हो गए। ये तो सर जनरल तो डेंटिस्ट्री सुनने की का नहीं। बात आप। तो यूजुअली यही हो रहा है डेंटल कॉलेजेस में। हम्म, कोई भी जब पढ़ने बैठ रहे हैं हॉस्टल में, क्या यार तू पढ़ती है, नौकरी तो है नहीं डेंटिस्ट्री में, हाँ यस छोड़। यस यही चीज मेन हो रहा है। एंड इवन आई यूजुअली टॉक माई वीडियोज, नेवर लिसन टू all these kind of bullshit. बिल्कुल यस Just do whatever you have come to do, and you will surely 100%। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, you will shine in your life। कैसे भी करके अगर आप सीरियसली हो अपने पैशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, तो जरूर से जरूर आपका सक्सेसफुल मतलब सक्सेस आएगा ही आएगा, सर झक मार के आएगा। आपने कोविड की बात बोली, उससे ही मुझे याद आया कि कई लोग अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपको भी कर रहे होंगे कि अब कोविड टाइम आ गया 2019-20 और इंटर्नशिप अच्छे से नहीं हुई, पेशेंट्स कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो दे हैव नॉट लर्न एनीथिंग। उन लोगों के लिए आपने ऐसे लेसन दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप किसी ना किसी तरह अपॉर्चुनिटी बनाओगे। वो पर्सन आप तक पहुंचा तो उसने 100 जगह बात करी होगी, 99 ने बोला होगा कि मेरा क्लिनिक बंद है, एक आपने बोला कि मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस थोड़ी बहुत, तो यू कैन कम एंड लर्न, ही लर्न। ठीक है, तो इस तरीके से यही अपॉर्चुनिटी मैं भी बोलता हूँ। जो भी पर्सन मुझे कहता है कि नेगेटिव है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ बाहर निकलो, थोड़ा धक्के खाओ, थोड़ा लोगों से जानो पहचानो, लोगों से बात करो। एक मना करेगा, दो मना करेगा, तीसरे तक पहुंचेंगे तो इट विल गो अराउंड। पॉपुलेशन की जैसे आप बात बोल रहे हैं बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, तो ऐसी सैचुरेशन वाली बात मुझे कहीं पे दिखती नहीं। अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है तो हम्म। आप को हमने ट्रैवल करते हुए बहुत देखा तो है। तुमने अभी धक्के खाने वाली बात बोली ना, अभी हाँ मैं जी, धक्के खाने वाले की बात के ऊपर अपनी स्टोरी बताता हूँ, मुझे बिल्कुल सर, याद आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने मैंने धक्के खाए हैं। सो यू डोंट नो सागर, आई हैव स्टेड इन दिल्ली फॉर 6 months आफ्टर पासिंग माई एमडीएस। ओके ओके। ओके तो एक्चुअली मेरा मन था सेटल होने के लिए, जैसे कि सबके मन में बीडीएस होता है ना, तो बीडीएस के बाद मेरा इमीडिएटली एमडीएस हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, मैंने खूब एंजॉय किया अपने एमडीएस में, पढ़ाई भी वंडरफुल की। वंडरफुल एंड आई हैड अ गुड लाइफ इन बैंगलोर। तो वंडरफुल। थर्ड ईयर जब खत्म हो गया मेरा, सो एट दैट टाइम माई फादर वॉज नो मोर। एंड फादर जब चले गए मेरे, तो 2010 की बात है। तो मैं ज्यादा डिप्रेस नहीं था क्योंकि मेरे फादर पहले से ही बहुत इल थे। तो समवेयर अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट आई वाज लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि चलो पीसफुल उनको हुआ। भगवान ले गए, बिकॉज ही वाज सफरिंग ऑलरेडी विद मेनी डिजीजेस। यस। सो एट काइंड ऑफ आई वाज फ्री कि अभी मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ, आई डोंट हैव टू concentrate on that. हम्म। So my sister was at one place, my mother was at one place, and I was in Bangalore. My mother was in West Bengal, and my sister was at Calcutta. ओके। So मेरा एक विजन था कि हम लोग तीनों एक साथ रहें, हम्म। और हमारी एक फैमिली हो, मेरी मैरिज होगी जब भी होगी। एंड मेरा एक विजन था, तो मेरा मन था कि मैं दिल्ली में सेटल हूँ। ओके। तो धक्के खाने की शुरुआत तब से हुई, एमडीएस करने के बाद मुझे रियल लाइफ पता चली, बाहर में दुनिया। सो यू वोंट बिलीव सागर, आई हैव अप्लाइड जॉब इन 50 कॉलेजेस टू 60 कॉलेजेस इन एंड अराउंड दिल्ली। ओके। अब मैं आपको शहर के नाम बताऊंगा, फरीदाबाद आ गया उसमें, गुड़गांव आ गया उसमें, आपका दिल्ली वाला जो एरिया है, दिल्ली टू मुरादाबाद वाला जो हाईवे है, उसमें जितने सारे कॉलेज हैं, बहुत डीजे बढ़िया। डेंटल कॉलेज, आईटीएस मुरादनगर, ओ देन गुड़गांव, एसजीटी गुड़गांव, एंड ओके। देन आईपी डेंटल कॉलेज, संतोष डेंटल कॉलेज, Oh, ऑल IP द is very कॉलेजेस अराउंड close to दिल्ली। my house. Oh my God. We never knew this thing about it. ओके। Right. एंड आई यूज्ड टू स्टे इन दिलशाद गार्डन। ओके। Okay. अब दिलशाद गार्डन से, अब मैं जब वहां पहुंचा तो मेरे पास सेव स्टाइफंड के कुछ कम से कम 80,000 रुपए बाकी थे, मेरे पास 80,000 बाकी थे। और मेरा एक फ्रेंड भी था, ओरल सर्जन, जो कि मुरादाबाद से था, एंड ही वो दिल्ली आ गया था। तो हम लोगों ने प्लान किया हम लोग दोनों दिल्ली में रुकते हैं। तो हमने एक रूम रेंट पे लिया दिल्ली में। और इनिशियली तो रूम नहीं मिलेगा ना, इनिशियली हम 6 लोग, एक एक सिंगल इतने बड़े रूम में 6 लोग रहते थे। Oh. उसका भाई, उसके वो इंजीनियर भाई, तो हम 6 people used to stay in one room. It was so hot in Delhi in May. Yes. And और हम लोग बस से, तो मैंने कितनी जगह पे जो जॉब अप्लाई की, मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। 50 जगह पे मैंने अप्लाई किया, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई किया जहाँ पे आप माँ के बिहारी डेंटल कॉलेज, कोई स्टूडेंट नहीं, मतलब बिल्कुल। हालत मेरी खराब हो गई। देन व्हाट आई डिड इज,
I saw in Facebook about some vacancy in some dental clinic which was in Chhatarpur. Oh, Chhatapur, very far away. तो दिलशाद गार्डन से छतरपुर आप जानते हैं कितना दूर है. बहुत दूर है सर. इट्स वन कॉर्नर ऑफ दिल्ली एंड द अदर उधर कॉर्नर. से सो है. मैं सुबह 6 बजे उठ के मेट्रो पकड़ के, आई टू वेक आउट 5 AM आफ्टर पासिंग माई एमडीएस. मैं मेट्रो पकड़ के पहुंचता था 8 बजे वहां पे क्लिनिक में. एंड आई टू वर्क इन दैट क्लिनिक फॉर, यूज टू पे मी 15,000 रुपीज, द डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक इन छतरपुर. Okay. सो वहां पे मैं काम करता था. वहां पे 7 बजे मैं निकलता था शाम को और 9 बजे आपको घर आता था. फिर अगले दिन मुझे 5 बजे उठ के फिर, so this routine was there for 4 months. So after that I got a job in Jodhpur, Rajasthan. Okay. तो वह राजस्थान गया, फिर वहां से फिर उड़ के इधर भुवनेश्वर आया. सो वेयर आई गॉट, तो बहुत धक्के खाए मैंने भी. राइट सर. तो धक्के खाने के बाद से तब वो दिन याद आ जाते हैं मुझे. ये तो सबकी जानना ऐसा जरूरी कुछ है. नहीं है कि जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया और एवरीथिंग इज स्पून फेड. जो लोग बोलते हैं ना कि डेंटिस्ट्री इज फॉर रिच पीपल एंड हाई क्लास पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं है. सर कुछ नहीं सर, ऑब्वियसली यही स्टोरीज हम जानना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि पीपल लोगों को एक बहुत बड़ा गलत फहमी है कि अगर इन्होंने इस लेवल पे पहुंच गए, इतने क्लिनिक्स इतने अच्छे से चला रहे हैं और पीजी भी कर ली है, तो बहुत स्मूथ रही होगी राइट. पर जब हम अपनी स्टोरीज बताते हैं, आप अपनी बता रहे हैं, मैंने अपनी बताई, शेयर कर रखी है पहले और बताता रहता हूँ मैं, तो दीज पीपल गेट इंकरेज कि इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है, दैट बिल्ड से कैरेक्टर आउट ऑफ यू. जैसे आप बता रहे हैं, आपने जितने कॉलेज बताए, इट्स ए वेरी गुड थिंग कि आपको यहाँ जॉब नहीं मिली. मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जितना एक्सप्लॉयटेशन इन जगहों पे होता है, एमडीएस पीपल का, बीडीएस पीपल का, इवन नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, मुझे भी जॉब ऑफर की गई $10,000 पे, एंड फॉर द होल डे आई हैव टू बी देयर. I can earn 10,000 in my clinic in one go, in one shift. तो तब मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि कॉलेज जब क्लिनिक नया खुला था तो लगता था कि कर लें क्या, बट वहीं के लोग बताते थे कि पूरे दिन यू हैव टू डू पेपर वर्क. तो आपने वो चीज नहीं पकड़ी, आपको भगवान ने उस जगह से हटाया, इट्स अ वेरी गुड थिंग. और दिल्ली का क्या हाल हुआ है अभी आपको बताइए, हाउ इट वाज. सो आई लिव वेरी नियर बाय टू दिल्ली. आईपी डेंटल कॉलेज इज वेरी नियर बाय टू माय प्लेस. बट जो कंडीशन आपके उड़ीसा में डेंटिस्ट्री की है, वो मेरे ख्याल से काफी बेटर है दिल्ली के मुकाबले. People are here not ready to pay easily, and they want the high class treatment also, and they'll not respect you easily for the work you will do, right? So आप जैसे एरिया से अपने डेंटिस्ट्री को भी अच्छे से ले जा रहे हैं, टीचिंग को भी अच्छे से ले जा रहे हैं, प्लस यूट्यूब हम जानते ही हैं कि हाउ बिग इट इज द प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एवरीबडी नोज, मतलब जब मैंने शेयर किया एवरीबडी नोज कि सर आने वाले हैं, तो विल बी देयर. सी वी आर मोर देन 100 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ. तो सर हम यही आपकी पर्सनल स्टोरीज में से एक चीज ये भी जानना चाहते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव द सपोर्ट ऑफ फैमिली. जैसे आपने बताया सुपर्ब एग्जांपल कि आपके फादर ने इतनी इम्पोर्टेंट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प की. सिमिलरली आई एम श्योर मैम ने भी आपके कई डिसीजंस में आपको हेल्प की होगी. तो कितना इम्पोर्टेंट है. और कई लोग कंडीशन बेस्ड मैरिजेस सोचते हैं, दैट मीन कि डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट से मैरिज करनी है. एग्जैक्टली. तो ये सब चीजें बहुत माइंड में रहती है. आई नेवर थॉट ऑफ दिस, दैट हैपेंड, राइट. तो ऐसा कई बार होता है. और कई लोग प्रैक्टिकल मैनर में सोचते हैं कि सेम प्रोफेशन के होंगे तो माइंडसेट सही रहेगा, और होता भी है कई बार. बट मेरे केस में ऐसा मैंने नहीं सोचा था. आई थॉट कि द पर्सन शुड बी पैशनेट अबाउट एनीथिंग, एटलीस्ट समथिंग इन लाइफ, राइट. शी शुड नॉट फील दैट आई एम ए गर्ल एंड आई हैव टू डू दिस गर्ली वर्क्स. तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना हेल्पफुल रहा एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना आपके साथ. लाइफ पार्टनर की बात मैं बताता हूँ. सो एवरीथिंग. तो कॉलेज के पहले, कॉलेज टाइम में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे. तो बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट गेट मैरिड टू हर. एंड उसके बाद मैं जब काफी सालों तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब कोई फ्रेंड नहीं बनी. तो इस कॉलेज में जब भुवनेश्वर आया तो आई रियली लाइक वन गर्ल. अब मैं फोटो भी आप पीछे देख रहे होगे. सो ये मेरी फोटो है मेरी वाइफ की. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यू कैन सी. I've seen. Beautiful. सो ये मेरी वाइफ है. तो एक्चुअली व्हेन आई वाज सीनियर लेक्चरर इन दिस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, एंड the first day she came to me, and she's from 140 kilometers, a place called Bhadrak from here, and she asked me permission, sir, shall I leave early from college? It was a Saturday. तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला कि क्यों, हम लोग तो कहीं नहीं जा रहे हैं. तो मैंने उसको मना कर दिया जाने के लिए. तो अगेन आफ्टर हाफ एन आवर शी केम एंड आस्क्ड मी, सर प्लीज कैन आई गो, मेरी लास्ट बस मिस हो जाएगी.
Okay. So I didn't reply anything, and one of her friend, she came and he or she, I don't know, she told, sir, that is the last bus. तो आप प्लीज अलाउ कर दीजिए तब वो जा पाएगी. तो Right. फिर आई थॉट ओके मे बी शी इज टेलिंग द ट्रूथ, एंड आई जस्ट allowed her to go. And after that things started in college. Like she was just her internship was going to get over in another a month or so, and after that I started interacting, and slowly I started liking her. And उसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप हुआ. एंड उसके बाद आई नेवर थॉट कि ऐसे वो डेंटिस्ट है और इसलिए मेरा डेंटिस्ट हूँ तो फायदा होगा. जस्ट मुझे लड़की पसंद आई, Definitely. एंड आई रियली लाइक्ड हर बिहेवियर, एटीट्यूड, एंड इट really helps you a lot. Means whenever you are stressed out, या फिर any problem you are having, the things which you cannot share with your parents, you can share with your life partner. Yes. So that is very important to choose a good life partner. And ये अपने आप ही होगा, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा कि जैसे कि मिशन पे जा रहे हो और लड़की ढूंढ रहे हो शादी करने के लिए. Definitely. काफी लोग मुझे डीएम्स करते हैं, सर मैं एक एंडोडोंटिस्ट हूँ और मुझे किससे शादी करनी चाहिए, उसकी ये होगी वो होगी. मैं उनको एक सीधा रिप्लाई करता हूँ कि जिसके साथ मन का मैच हो, जो लड़की पसंद है उससे बस कर ले, ज्यादा मत सोचो Yes. क्या कैरियर है. बिकॉज सी जो भी है पैशनेट है, जो भी है पैशनेट नहीं है, पर दिल साफ होना चाहिए. और you should not fall into some kind of trouble after marriage. Right? You are the best judge of your. मेरे को जहां तक लगता है कि अगर आप मैरिज कर रहे हो और आपका कोई मोटिव होता है ना पीछे की, हाँ उसके पास बहुत पैसा है या फिर वो एमडीएस है, तब वो those kind of marriages they end in Very bad. ruining the relationship. Very bad. बिल्कुल भी नहीं सही सोचना चाहिए. बिल्कुल. और जैसे हम लोग देखते हैं कोई सुंदर लड़की है या हैंडसम लड़का है तो वी फॉल इनटू अट्रैक्शन, एंड अगर कुछ पसंद है तो बोल दो. इफ थिंग्स अगर भगवान ने लिखा होगा उसके साथ तुम्हारी जोड़ी तो जरूर होगा, नहीं तो नहीं होगा. बिल्कुल. दैट इज द थिंग. एंड यू शुड नॉट थिंक टू मच कि या वो कैरियर वाइज ना सोचना नहीं चाहिए. यू शुड रियली सी वेदर योर मेंटालिटी, योर कॉन्शियस सोलमेट तुम लोग बन सकते हो कि नहीं. Yes. अब वो भी टाइम भी होता है. बहुत लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज करने के बाद भी उनमें लव होता है. ऐसे कोई अरेंज मैरिज करना गलत बात नहीं है और लव मैरिज करना भी कोई गलत बात नहीं है. बट मेंटालिटी मैच अगर नहीं हो रही है तो वो कराने की कोशिश करनी है. ऐसा नहीं कि एक ही बार में तुम हार मान गए, वो इसके साथ मेरा मन मैच नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्टार्टिंग में हमको भी दिक्कतें आई जब हम एक साथ रहने लगे, हम में भी झगड़ा होता था. जब मुझे फील हुआ कि उसको ये चीज पसंद नहीं है तो आई स्टॉप डूइंग दोस थिंग्स. शी ऑल्सो केम टू अंडरस्टैंड कि ओके कुछ चीज मुझे पसंद नहीं है. तो स्लोली वो एकदम में नहीं हुआ. वो लव मैरिज के बाद भी डेफिनेटली सर. सो एवरीथिंग सब खत्म हो, शादी के बाद अरेंज मैरिज लव मैरिज दोनों सेम हो जाती है. सेम हो जाती है. देयर इज नो डिफरेंस. बिल्कुल सेम हो जाती है. एंड दिस इज द सेम थिंग व्हिच हैपेंस इवन आफ्टर अरेंज. देयर इज नथिंग, नो सच बिग डिफरेंस इफ यू डू अ लव मैरिज एंड डू मैरिज. इफ यू मतलब प्यार होके शादी होने में और अरेंज मैरिज होके शादी होने में जब दोनों हो जाता है तो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. यस सर. ओनली यू नो द पर्सन बिफोर मैरिज. वैसे भी हम लोग शादी के पहले आस्ते आस्ते फोन पे बात करते हैं ना, 6 महीना 8 महीना, उसके बाद ही शादी करते हैं. बिल्कुल. ये गलती सर मैंने कई लोगों को करते हुए देखी. दैट अरेंज मैरिज इज ओके बट कंडीशन जैसा आपने बताया कि कंडीशन बीच में डाल देना दैट द पर्सन शुड बी ऑफ दिस प्रोफेशन, या वो मुझे इतना पैसा कमा के दे दे या इतना मुझे मिल जाए, ऑल ऑफ दैट. ये प्रॉब्लम. और जैसे आपने बताया कि इंटरेक्शन होना, लोगों को लगता है कि अच्छा रिलेशनशिप ये है कि कोई लड़ाई नहीं होती. मुझे लगता है कि डिफरेंट. आई डेटेड फॉर 1 year बिफोर गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई मैरिड टू. तो उस 1 साल के बीच में ऑल्दो शी वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, इतना बड़ा डिफरेंस कि हम बात भी फोन पे ही कर रहे हैं. बट फोन पे भी इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होना वो होना ही था, डिफरेंसेस आने थे. बट उन डिफरेंसेस में हम बोल रहे हैं कि इफ यू लव समवन तो यू विल डू एवरीथिंग टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप. आप उसको टॉक्सिक नहीं होने देंगे. आप अपने आप को चेंज करेंगे, आप देखेंगे उसको क्या बुरा लगता है, वो भी देखेगा कि आपको क्या बुरा लगता है. दोनों साइड से चलता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग. सर ट्रैवल के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो लव टू ट्रैवल बट उतना नहीं कर पाता जितना आप रूटीनली कर लेते हैं. स्मूथली लगता है हमको कि सर इतने बिजी होते हुए भी वो टाइम निकाल लेते हैं. तो व्हाट इज ट्रैवलिंग फॉर यू? बिकॉज जब से ये जवानी है दीवानी आई है हर कोई यही बोलता है कि आई लव ट्रैवलिंग. बट करते कैसे हैं आप उस चीज को मैनेज, और कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो चीज माइंड को? मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
Yes. मतलब कि ट्रैवल व्हाट डज इट डू एक्चुअली, आई विल टेल यू, Hmm. इट ओपन्स अप योर माइंड। Hmm. आपको लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलती है। Right, sir. क्यों? बिकॉज यू गेट अ डेस्टिनेशन, you are reaching there and you meet so many new people, you tend to meet so many different type of cultures and Hmm. you see so many different type of cultures कि आपका brain उससे बहुत ज्यादा activate होता है first of all, Hmm. and you tend to have a मतलब कि it's like a meditation। Yes. Yeah. सपोज अभी मैं अभी ट्रैक करके आया, Hmm. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, मतलब कि इन द स्नो 14 आवर्स मैं ट्रैक करके आया। एक दिन में मैंने 35 किलोमीटर पैदल चला, Okay. अपहिल स्नो ट्रैक एंड कमिंग डाउन ऑन द वेरी सेम डे। Yes, sir. We did this because other people who were in the trek they backed out, and so I thought ki if I don't go, I have to do this. So there was a mountaineer who was along with me, Hmm. and one more guide was there. So हम लोग तीनों लोग गए, and there's a YouTube video in Abhishek Pati vlogs if you see. Yes. So I have pushed all the videos in Yes. Yes. कैसे हम लोग गए और all the things are there. So that is an achievement for me. वहां Hmm. पहुंचने के बाद मुझे लगा कि no, this is the thing, and so after you are in so much busy life, you are मॉर्निंग में आप क्लिनिक कर रहे हो, हॉस्पिटल Hmm. जा रहे हो, बच्चों की क्लास ले रहे हो, एंड समवेयर हाउ मच एवर यू आर लाइक, मतलब कि यू आर हाउ मच एवर यू आर वर्किंग, हाउ मच एवर मनी यू आर मेकिंग, Right, sir. सो दैट मनी हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। ऐसा Right. नहीं कि आप सिर्फ बैंक में अपना पैसा जमा रहे हो और अपना मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो। यू नीड टू सी लाइफ ऑल्सो, Hmm. यू नीड टू गो आउट ऑफ योर वेल विच यू आर इनसाइड। Right. अगर आप खुद के डंजियन में हमेशा गुफा में घुसे रहोगे, आपका दिमाग नहीं खुलेगा, यू वोंट बी ओपन, यू वोंट Hmm. हैव द लॉजिक, यू वोंट हैव टाइम टू थिंक। Hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग क्या सोच पाते हैं क्या? सुबह उठते हैं, भागते हैं, जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आते हैं, ये सो इन द हसल बसल ऑफ लाइफ इफ यू टेक अ ब्रेक ऑफ 10 और 12 days इवन फॉर अ वीक, so Hmm. that will give you a good boost। Right. अब जब क्लिनिक जाता हूँ मैं, अभी मैं जा रहा हूँ क्लिनिक, तो मुझे अरे यार ऐसा फील होने लग गया था बीच में, Hmm. क्या है क्लिनिक जा रहा हूँ मैं, मन नहीं कर रहा। Hmm. सो दिस फीलिंग शुड नॉट कम। Hmm. सो यू नीड टू टेक रेगुलर ब्रेक्स इन ऑर्डर टू वॉट एवर, पैसा लॉस जाने दो, Right. पैसा लॉस होगा, Right. Right. पैसा लॉस होगा, पर उसमें उसमें जो मेरे को एनर्जी मिली है वो अगले एक साल तक मुझ में फुल एनर्जी भर गई है। Yes. Yes. आई एम रियली एंथुसियास्टिक, ऑल माई हॉर्मोन्स हैव गॉट बैलेंस्ड, जितना भी दिमाग में लोचा था, केमिकल लोचा, सब निकल गया, एंड यू विल फील वेरी फ्री Right. आने के बाद। सर वो सो कहते दैट्स हैं व्हाई ना आई ट्रैवल। कि जिम वगैरह में कहते हैं ना कि जब जब आपकी मसल जब आप फ्लेक्स कर रहे हैं तब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, जब रिलैक्स करते हैं तो ज्यादा ग्रोथ होती है। जैसे जितने आइडिया मुझे आते हैं सारे उस टाइम पे आते हैं जब बिल्कुल दिमाग खाली होता है, शावर ले रहे हो आप, मेडिटेशन कर रहे हो आप। तो ट्रेवलिंग में भी वही चीज होती है। इसके सिवा ऐसी क्या हॉबीज हैं सर जो आप चाहेंगे कि लोगों को फॉलो करते रहनी चाहिए? जैसे ट्रेवलिंग इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, फॉर सम पीपल रनिंग, फॉर सम पीपल जिम, फॉर सम पीपल स्पोर्ट्स। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है जो आपको बीच में होना चाहिए ब्रेक देता है। एवरीडे लाइफ में। राइट। देखो अब ये स्पोर्ट एक्टिविटीज पे ऊपर मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा कि स्पोर्ट एक्टिविटीज इज नॉट अ हॉबी, वो शायद एक रेगुलर होना चाहिए आपके हम्म। जो भी आप कर रहे हैं। राइट सर। और उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अभी इस यहाँ पे तो ज्यादा स्टूडेंट्स ही हैं, उन लोग जो कि दिन भर प्रैक्टिस में घुसे रहते हैं, हम्म। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से निकल के अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। संडे को राइट कोई सर। एक दिन, हर रोज क्लिनिक नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि एक दो दिन अगर आप टाइम निकाल के अपने, क्योंकि हमको ये रोज वही काम करना है, तो अगर हम्म। आप उसी चीज को बार बार करोगे आपको घिसा पिटा लगेगा एंड बोर लगने लगेगा, यू वोंट फाइंड एनीथिंग एंथुसियास्टिक इन इट। सो यू नीड टू टेक रेगुलर ब्रेक इन बिटवीन एंड पुट अ हॉल्ट इन व्हाट यू आर डूइंग, लुक अराउंड व्हाट पीपल आर देयर हु इज स्टेइंग विद यू, सबके बारे में आपको सोचना चाहिए, राइट सर। बैलेंस बना के रखना चाहिए। और उसी तरीके से आप अपने जैसे कि आप अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, राइट सर। राइट, तो वो क्या करता है, अब जितना आप काम करेंगे आप उतना ज्यादा एंग्शियस होंगे, उतना ज्यादा नर्वसनेस आपके अंदर आएगी, उतनी ज्यादा आप बैठे रहोगे, डिजीज आएगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत फ्री हो मेडिटेशन करके, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, सबको मैं बोलता हूँ कि मेडिटेशन थोड़ी बहुत करनी चाहिए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज जो कि 20 मिनट्स से 25 मिनट्स आप हल्का एक्सरसाइज कर लोगे तो यू विल बी एनर्जेटिक फॉर द एंटायर डे। यस। यस। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इससे थोड़ा दूर रहना है ज्यादा। आप मैक्सिमम दिन में 4 घंटे से ज्यादा आपको फोन यूज नहीं करना चाहिए। राइट। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम गेटिंग कॉल्स, आपको नेट सर्फिंग ये 4 घंटे उसका लिमिट रखना चाहिए, उससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज रियली टेकिंग अ टोल ऑन मेनी पीपल
देयर हेल्थ, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होती हैं इसकी वजह से, इतना फोन देखने से थोड़ी बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम तो आती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज होती है। और सर जैसे कॉलेज की स्टोरीज होती हैं, या जैसे आपकी भी कॉलेज की स्टोरीज होंगी, पीजी की, यूजी की, व्हाट वर योर लेसन्स? मतलब जैसे हमारे लिए आप मेंटर हैं, आपके लिए कोई और मेंटर रहा होगा जिन्होंने आपको एक लेसन्स दिए होंगे, जो अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी हैं यहाँ पे हमारे साथ, स्टूडेंट्स अभी इस बार बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है कि कोविड है, तो अब इस टाइम पे हम क्या करें कि कॉलेज भी नहीं जाने को हो रहा है, तो ऐसा क्या कर लें जो हमें एटलीस्ट हमें ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्ट हो गया उस बीच में। तो ऐसी स्टोरीज आपकी भी होंगी जिन्होंने आपके सीनियर्स ने कितने एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, पहले ये बहुत अच्छा चीज तुमने पूछा हाँ जी सर। कि कैसे हमको क्या करना चाहिए ताकि ये स्टूडेंट्स को ना लगे आफ्टरवर्ड्स, गिल्टी फील ना हो कि यार मैंने पूरा 2 साल अपने लाइफ पे बर्बाद कर दिए। राइट सर, राइट सर। अभी भी समय है। हम्म। ओके, स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ। आप, एक बुक आती है डेंटल पल्स, जो कि सबसे इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, यस। उसको खोलिए और उसको नॉर्मल पढ़ना चालू करिए। राइट। अगर आपने आधी डेंटल पल्स भी पढ़ ली अपने इस छुट्टियों के टाइम में, हम्म। that will give a good boost to your memory, it will give a good boost to your, आपको जो वाइवा का सारा प्रिपरेशन हो जाएगा डेंटल पल्स से, है कि नहीं? राइट इवन इफ राइट। यू आर इन, है कि नहीं? तो बिल्कुल। अभी ये जो छुट्टी का टाइम है, बहुत लोग पूछते हैं कि एमडीएस के लिए, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे इस टाइम पे, तो लोग ज्यादातर सीरीज ही देख रहे हैं आजकल और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये होगा कि इफ यू इवन इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, टेक सम स्पोर्ट एक्टिविटी लाइक बॉक्सिंग, या फिर कोई भी आप गोल रखो अपने अंदर कि मैंने ये अचीव किया। इवन इफ यू वांट टू लूज वेट, जस्ट डू दैट। यस। आपको ये नहीं होने लगना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, बेकार अब मेरा टाइम चला गया, आई कुड हैव एटलीस्ट डन दिस, आई कुड हैव डन दैट। कुछ भी आपको जो मन है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पहले टाइम आप नहीं दे पा रहे थे, इवन इफ यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, आप वो करिए। राइट। अगर आपको किताबें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जैसे कि कोर्स की किताबें, तो आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, राइट। उससे भी आपको। लेकिन फोन से और टीवी से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि टीवी में तो नेगेटिविटी न्यूज ही भरी है, और फोन अगर आप ज्यादा स्क्रीन टाइम रखेंगे तो, और इंस्टाग्राम रील देखते रहेंगे, तो आपका उससे दिमाग क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे यू फील गिल्टी, यार मैंने कुछ नहीं किया आज, हाँ। राइट? राइट। सो दिस इज अ थिंग, यू शुड रीड सम बुक्स ऑल्सो अलोंग विद, कोई भी बुक, स्टोरी बुक हो सकती है, नॉवेल हो सकती है, सेल्फ हेल्प बुक हो सकती है, कमिंग ऑन टू बुक सर, तो आई एम या सॉरी। फिर कोई भी पेंटिंग, यस। मिरर पेंटिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, किक बॉक्सिंग, जो आपने बहुत सालों से आपको किसी चीज में मन हो। हम्म। आजकल तो सारी चीजें अवेलेबल ऑनलाइन होती हैं, तो राइट। आप घर पे कुछ भी चीज मंगा के उसको स्टार्ट कर सकते हो। फोन का तो सर स्क्रीन टाइम क्या चेक कर सकते हैं आप कि कितना आप फोन सॉरी, का। नो वरी सर। वन फोन का सेकेंड, सॉरी। स्क्रीन टाइम आप चेक कर सकते हैं कि फोन में कितना स्क्रीन टाइम आपका आपका जा रहा है। या बट या कमिंग ऑन टू द बुक्स, क्योंकि आई एम ए बुक लवर, आई नो दैट यू रीड अ लॉट, तो आपकी फेवरेट बुक जानना चाहूंगा, जिससे शायद और स्टूडेंट्स या मैं जिसने आपको इंस्पायर किया हो, विच इज द वन फेवरेट बुक, 1 to 2 फेवरेट बुक जो आपको लगता है कि एवरीवन शुड रीड अकॉर्डिंग टू यू, जो हेल्पफुल हो सकती है लाइफ में। सो आई रीड अ बुक हुज ऑथर इज, मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है यहाँ पे। अमेजिंग सर। तो अमेजिंग। देयर इज अ ऑथर कॉल्ड थिक नाथ खान, ही इज अ, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सर, So बिल्कुल। he's a, he is a very good author, and he is Zen Buddhist actually, and he ओके। writes all the Buddhist beliefs and Buddhist thoughts. ओ। So he is telling here like how you can, in every day-to-day life, how can we meditate? Suppose we are meditating, right? So what we do, we sit here like Baba Ramdev ji and we'll do like this. Okay, so he tells that this is all limitation. Actually, what you have to do is you have to meditate. You have to concentrate on your breath. आपको कुछ नहीं करना है. Just even if you are sleeping on the bed, you can meditate now also. You can just sleep and you can slow your body, slow your mind, सब कुछ दिमाग से निकाल के राइट। आप अंदर सांस ले रहे हो, आप सोचो कि मेरी जो सांस है, जो and just feel it and just take it out. तो उसी के बारे में बुक है, different aspects, how you think about life and how you should be as a perspective. अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ को किस तरीके से आपको जीना चाहिए, कैसे करने से आपको इम्पर्मानेंट, इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई हर चीज इम्पर्मानेंट है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, राइट? मतलब कि
फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे कि आपका कोई बेटा या बेटी है, उसको बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन मत रहो कि वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा. सो एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट. आज ये चीज आपके पास है, कल नहीं रहेगा. अभी मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके ओनर ने बोला घर छोड़ दो, मेरी बहुत अच्छी रनिंग प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बंद हो गई. इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए. राइट. ठीक है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, इम्परमानेंस ऑफ थिंग्स and materialistic things and live a minimalist life. राइट. So basic things we should have, we all have what we, so हमको रोना नहीं चाहिए यार यार मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है. That is the book all about. Right, right. So teaching पे I'm again and again coming on teaching because there are so many students here जो बार बार teaching पे पहुंचते One हैं second, मेरा तरफ ब्लूटूथ बंद हो गया शायद. okay, okay, sir. Please check it. No worries. जब तक आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं. Am I audible? Yes, you are, sir. There are too many questions, sir. एक साथ तो बात नहीं हो पाएगी. जी. कुछ क्वेश्चन I can see. जैसे एक तो मैसेज आया है, मैं बताता हूँ. हाँ सर प्लीज. सर आजकल ऐसा लग रहा है कि एमडीएस करके भी कोई मतलब नहीं है. देखो क्या नाम है इसका, तुम वो बताओ. असाद एम डॉट प्रोसो सागर जी बताएंगे क्या है इसका, क्या हम जवाब दें. नहीं सर, सी ये क्वेश्चन जो एमडीएस पर्सन है वो ज्यादा अच्छे बता सकता है. मैं कभी इस चीज को इंकरेज नहीं करता कि एमडीएस और बीडीएस और व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. कैसे कि एमडीएस अगर आपको करनी है तो इसलिए नहीं करनी है. एम आई ऑडिबल ट्वाइस सर? कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है साउंड में. हेलो, अब ठीक है? अब ठीक है. मैं मेरी आवाज गूंज रही है. तो मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि दिस इज अ फेज राइट नाउ, एवरीबॉडी इज पासिंग थ्रू द सेम फेज. अब हमारे क्लिनिक में एक टाइम पे फुल डे में 10 पेशेंट आते थे, अभी 3 पेशेंट आ रहे हैं, 4 पेशेंट आ रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज इन लॉस. तो लॉस तो आपको झेलना पड़ेगा इस टाइम पे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते. बट यू कैन do one thing after like this COVID gets over, you can join some clinic of a prosthodontist. You may be a professor in college, and at that time you will hone up your skills to the right amount. जो आपको एमडीएस में सीखना था, आप अपने क्लिनिक में या फिर किसी प्रोफेसर के पास काम करके आप सीख सकते हैं. That is the only way out. Nothing else we can do. सर जॉब्स पे जैसे क्वेश्चन लोग करते हैं एमडीएस के लिए, जॉब पे कितना डिपेंडेंट होना इज ओके आफ्टर एमडीएस? देखो फिलहाल अभी जब दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम विच प्लेस यू आर. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है आजकल. बिल्कुल. मैं ये मानता हूँ कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ जॉब, सर्च फॉर अ क्लिनिक फर्स्ट. अब जब क्लिनिक खोल लो, इन दैट क्लिनिक के आसपास वाले एरिया में देखो कौन सा डेंटल कॉलेज है और वहां पे जॉब अप्लाई करो. राइट. सपोज मैं रहता हूँ भुवनेश्वर में, ठीक है, और मेरा घर है भुवनेश्वर में. फॉर एग्जाम्पल मैंने पास आउट किया, मैंने चेन्नई से बैंगलोर से पास आउट किया और मुझे एक जॉब मिल रही है गुजरात में. ठीक है, 40,000 की सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी. तो क्या मुझे वो जॉब करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो जॉब, क्योंकि आई नो कि वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू लीव दैट जॉब एंड आई हैव टू कम बैक टू माय नेटिव, ओपन अ क्लिनिक. तो अगर आपको क्लिनिक ओपनिंग करने में इंटरेस्ट है, तभी आप अपने जगह पे एक ना एक दिन तो आपको आना ही है, तो आप अपनी जगह पे जाके पहले क्लिनिक खोलिए. फिर अगर उस कॉलेज के आसपास के वाले एरियाज में आपके अगर कॉलेज में जॉब नहीं भी है, फिर भी वहां पे बार बार जाइए, रिज्यूम दीजिए, एंड कभी ना कभी आपको उस कॉलेज में आपको जॉब लगी जाएगी. क्योंकि मैंने काफी सारे यहीं के स्टूडेंट्स को देखा है कि जब बिल्कुल जॉब्स नहीं थी 2-3 साल पहले, तो वही लोग बार बार आते थे, डीन से मिलते थे, उनका क्लिनिक था यहाँ पे, एंड now they are my juniors and they are colleagues. They have got into senior lecturership. Right, sir. One time they were interns in the same college. Internship कर रहे थे यहाँ पे, then they did their MDS somewhere outside. Then they again came back here in this college. They didn't get any job. वहाँ फिर छोटे मोटे odd jobs करते थे इधर उधर. Then now they have joined as senior lecturers in my college. Even my PG student has become a reader in another college in Bhubaneswar, High Tech Dental College. Wonderful. तो उसको भी तो जॉब नहीं लगी थी ना पहले. 1-2 साल
नहीं लगती है, फिर लग जाती है। राइट तो थोड़ा इमीडिएटली नहीं होती है, लेकिन हो जाता है। राइट, यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट। तो किसी ने लिखा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग, बीसीआई और आईडीए के बारे में दे वांट टू नो कि ये हर सिचुएशन में चुप क्यों रहते हैं। आईडीए आईडीए एंड डीसीआई के बारे में किसी ने लिखा है, चुप क्यों है, मतलब किस चीज के ऊपर? हर सिचुएशन में दे आर सेइंग कि चुप क्यों रहते हैं। एक्चुअली ये लोग अंदर अंदर में काम कर रहे हैं वैसे, हम्म, इतना नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राइट अंदर अंदर में दे आर डूइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन, जहां तक मेरे को नॉलेज है। और इतना जैसे कि आईडीए उतना शो नहीं करता है कि सोशल मीडिया पे। राइट एंड द पॉपुलेशन ऑफ दिस थिंग इज डेंटिस्ट इज वेरी लेस, पावर इज वेरी लेस। राइट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसिस आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जैसे अभी बाबा रामदेव का आया था कुछ दिन पहले कि, तो अब आईएमए जब सवाल उठा रही है तो दैट इंक्लूड्स अस आल्सो। यस यस समझ रहे हो ना, मतलब एज अ होल डॉक्टर, एज अ होल सोसाइटी, एज अ होल कम्युनिटी, जब वो आवाज उठा रही है, केस वेस फाइल कर रही है, और आईडीए कोई नहीं कर रही, क्योंकि आईएमए तो कर रही है इसलिए आईडीए नहीं कर रही, और क्या इसीलिए। एंड वो जो बॉडी है, that body comprises of very small amount of members. It's not a very huge organization. Funds are limited. और जब तक colleges और students में reform नहीं आएगा, so the first thing what we need to do is we need to reform ourselves. Then only this situation will change. We should always help our fellow students, fellow dentists, juniors, seniors, जो भी help हो सकती है, जितनी ज्यादा dentist की एक दूसरे को करनी चाहिए। कंपटीशन तो है वैसे मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिफेम कर रहे हो अपने फ्रेंड को, या फिर बोल रहे हो कि ऐसे तरीके बोल रहे हो, अरे ये तो बेकार काम हुआ है, इससे अच्छा तो मेरे क्लिनिक में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, अभी 55, 56 जब भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी भी कंपटीशन के चलते कि अगर कोई स्केलिंग 1500 में कर रहे हो तो आप ऐसे बोले कि मैं 1200 में कर देता हूँ, आइए इधर करा लीजिए। You should always keep the rate same as the fellow dentist. आप अपना रेट रखिए, आपके क्लिनिक के हिसाब से कितना रेट होना चाहिए आपके हिसाब से। आपके क्लिनिक में, जैसे मैं अभी फीस, पहले मैं जब मैंने नया क्लिनिक किया था तो मैं 150 रुपीज फीस लेता था, लेकिन अभी मैंने अपना फीस 300 कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है आई एम दैट वर्थ कि मैं अगर 200 रुपए लगेगा तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे 300 लेना चाहिए। जितना आपको सेल्फ लगे अपने ऊपर उतना आपको लेना चाहिए, कोट करना चाहिए पेशेंट के ऊपर। राइट सर, आपसे अच्छा इस बात का यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। अभी मैं पर्सनली भी पूछ रहा हूँ, देयर आर पीपल who are very scared about black fungus right now. Not only patients, but dentists also. That if such patient will come to our clinic, I didn't know about this. I didn't know about this. Yes, that if the patient will come to our clinic, तो हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे एंड व्हाट विल वी डू, यू नो। बहुत इस बात का स्ट्रेस है लोगों में। देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक फंगस ऐसे ही नहीं हो जाएगा किसी को, डेफिनेटली। ठीक है, अभी जो ब्लैक फंगस इज कॉज्ड बेसिकली ड्यू टू बैक्टीरिया, सॉरी अ फंगस which is known as a deep fungal infection. So there is superficial fungal infection and deep fungal infection. Superficial fungal infection आप सब जानते हैं, कैंडिडियासिस होता है, ठीक है। डीप फंगल इन्फेक्शन में 3 आता है, ब्लास्टोमाइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस एंड म्यूकोरमाइकोसिस। इसको बोलते हैं डीप फंगल इन्फेक्शन, रियली फैटल आल्सो। राइट। अब जो ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ये इसको ब्लैक फंगस पहले कोई बोलता नहीं था इसको। ओके, ये ब्लैक फंगस अभी ये टर्मिनोलॉजी दिया गया है, कभी भी मैंने ब्लैक फंगस नहीं सुना। म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है ये बेसिकली होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में। म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस मैंने कोविड के पहले भी देखे हुए हैं। ओके, before COVID was there, I saw mucormycosis cases in Chennai. I have seen cases in Bangalore. I have seen cases in Bhubaneswar, Rajasthan. So this mucormycosis जो fungi है, जो spores है ना, अभी भी इधर घूम रहे हैं, मेरे सामने घूम रहे होंगे। It's a common spore which is found in the dirt. जमीन में मिलता है ये, dirt मिट्टी में। अच्छा। तो mucormycosis उन्हीं लोगों पे होता है जहाँ पे अब हेवी स्टेरॉइड यूज किया गया हो, या फिर पेशेंट का इम्यूनिटी कम गया हो, उन्हीं पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस होता है। तो ये बेसिकली इसका एक वेरिएंट है ओटोराइनोसेरेब्रल
म्यूकोरमाइकोसिस। Okay. ओटो मतलब ईयर, राइनो मतलब नोज, Nose. और सेरेब्रल जो ब्रेन में फैल जाता है। Right, sir. ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये बहुत डेंजरस होता है, जो कि आपके आई के थ्रू या फिर कैवर्नस साइनस होता है उसके थ्रू ये आपके डायरेक्ट ब्रेन में चला जाता है। तो कैवर्नस साइनस यहाँ की जो ये वाला जो एरिया है, मैक्सिला वाला एरिया में कैवर्नस साइनस रहता है, Right. जो हेमिस्फीयर वेन इज देयर व्हिच इज कनेक्टिंग विद द ब्रेन, हेमिस्फीयर वेन्स एंड कैवर्नस साइनस जो होता है। तो यूजुअली ये मैक्सिला में बहुत कॉमन है। अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखोगे उसमें मैंने म्यूकोरमाइकोसिस का फोटो लगा हुआ है थंबनेल पे, तो वो मैंने छोटा करके दिया हुआ है क्योंकि बड़ा करने से उसमें क्या कुछ तो वो वीडियो पेस्ट नहीं वो नहीं हो रहा था, Right, sir. क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव दिख रहा था वो लीजन। Okay. तो वो फोटो मैंने छोटा करके डाला है। तो बेसिकली क्या होता है म्यूकोरमाइकोसिस का इनिशियल सिम्टम, अगर कोई कोविड रिलेटेड या स्टेरॉइड रिलेटेड पेशेंट ही होगा तभी उसको होगा। आजकल सब लोगों को दिल्ली में ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट काफी यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह, वो लोग तो स्टेरॉइड लेते हैं तो वो लोग काफी डर रहे हैं कि कहीं हमें ना हो जाए म्यूकोरमाइकोसिस। Right, sir. काफी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, वो लोग डर रहे हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, नेजल डिस्चार्ज निकलेगा, स्टार्टिंग सिम्टम्स ब्लैक डिस्चार्ज टाइप का होता है, इसलिए वो ब्लैक फंगस नाम हो गया उसका। प्लस इट रियली अफेक्ट द मैक्सिला एंड टीथ। तो उसमें क्या होता है, सारा जो आपका टीथ नीचे गिर जाएगा एंड जो आपका जो सुपरफिशियल स्किन अराउंड द मैक्सिला पूरा खत्म हो जाएगा। तो इट इज द ओनली ट्रीटमेंट विच इज देयर विच इज सर्जरी, रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट इन विच म्यूकोरमाइकोसिस इज अफेक्टेड। Yes. जिसको हुआ है अभी काफी 3 लोग एम्स में कल मर गए म्यूकोरमाइकोसिस से हमारे यहाँ पे Oh. एम्स में, एम्स भुवनेश्वर में। Right. And initially there will be dizziness, there will be headache, one-sided headache, plus there will be reddening of the eye, swelling of the face in relation to the middle 1/3 of the face, zygomatic area आपका swelling हो जाएगा। So these are the features of mucormycosis. Plus if the patient is diabetic, it has uncontrolled diabetes, उनको भी काफी ज्यादा high chance रहता है। या फिर a patient who is on immunosuppressant drugs like people who have got some kind of organ transplantation or kidney transplantation, या फिर renal failure patients, इन cases में mucormycosis ज्यादा हो रहा है। Right, sir. Sir, coming on to the practice, people who are listening to us also want to get into practice after all of this. हो गया तो कोविड के बाद प्रैक्टिस वापस आनी है, तो व्हाट आर योर टिप्स कि अब कुछ महंगा रहेगा, चार्जेस बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, हाउ टू डू स्टरलाइजेशन एंड ऑल, व्हाट आर यू डूइंग इन योर क्लिनिक जो हेल्प होता है राइट नाउ? राइट सर, राइट नाउ। और इसके बाद भी सर, राइट नाउ देखो चार्जेस तो तुमको यू आर टेकिंग अ रिस्क, ओके। So right now, first of all, patient is what I am doing. Patient is calling me. I usually ask the patient to make me a WhatsApp call and I just talk with the patient कि क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत जैसे कुछ स्मॉल प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्वाइकल एब्रेशन हो गया या फिर सेंसिटिविटी हो रही है ड्यू टू एट्रिशन, तो आई एम नॉट कॉलिंग द पेशेंट। Okay. I'm telling the patient कि you use this paste, you take this antibiotic, or you take this painkiller. Right. If the patient problem is not solved, then I'm calling the patient to my clinic. Whenever the patient is, and I'm telling the patient not to come with any attender. So even if the patient is coming with the attender, I'm telling the attenders to stay outside of the clinic and either in their car or in the parking lot. Not to come inside the clinic, and I am giving only 20 minutes appointment to one patient, and after that 30 minutes no work. So I'm calling the patient, and then if it is required, I'm taking an IOPA and I'm using a PPA kit. And in those patients, if RCT is required, I'm just starting the RCT. Yes. Doing the BMP, finishing the BMP on the very same day, and then I tell the patient come after 1.5 months. Don't come now. Right. So this is the first patient appointment I am giving you because it was your emergency and you are having pain, and I am telling the patient to come in mid-July and call me if you are having any problem. So those numbers I am keeping, and after a period of 1.5 months, I'll call the patient and then we can start with the treatment. And if the patient is not reluctant, if the patient is not willing to do any RCT, like नहीं इतना बार हम नहीं आ पाएंगे, even if the tooth is not firm, but it is firm, I'm extracting the tooth. Right, sir. So maybe old patient also, and one more important thing, I'm preferring more old patients than young patients, because the old population has got vaccinated.
Yes. So usually I am preferring more old patients than young patients. Young patients also they are coming, but which is not required. I'm not doing actually. This is that thing. So I'm only keeping around 3 patients or 2 patients in the evening and 1 patient in the morning. Amazing. So 1 patient in the morning, I usually don't see my assistant and the doctor who is there. They go and check. Evening patient, the same patient, if it is required, I see on the very same day, or I am referring the patient later on. And if some CA patient comes, I'm just referring them to AIMS or I'm referring to my college. Right, sir. Right, sir. Seeing the condition, monetary condition of the patient. Right. If the patient is poor, I'm referring to AIMS. If the patient can pay, I'm referring to a private college. Definitely, definitely. But एंड एंड कंक्लूड मैं इस बात पे चाहूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग दैट आप जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं लाइफ में, अभी बहुत लोग उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, आर वेरी डरे हुए हैं अभी बहुत ज्यादा कि कैसे Can you पहुंचेंगे. come again? Actually, thank you. Can you come again? Yes, yes. The students are very scared right now कि आपको देखते हैं Okay. तो चाहते हैं कि उस लेवल के अचीवमेंट करें, बट अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है कि एमडीएस की वेकेशन भी है, कॉलेज भी बंद है, इंटर्नशिप भी नहीं हो रही है, प्लेसमेंट भी कम है. तो what would be your advice, जैसे आपने बताया बंदे को लेकिन स्ट्रगल, you discussed about your struggle, everything about it, कि कैसे आपने बिल्ड किया इन प्रॉब्लम्स को. तो what would be your last advice कि My advice only will be, we have patience first of all. Right now, you cannot change the situation. Yes. It's not in your hands, right? The first thing Accept it. you cannot do like जैसे थॉर जैसे ऐसे चुटकी बजाए और पूरा दुनिया चेंज हो गई. ऐसा तो अब नहीं होगा ना. अब धीरे धीरे ही अब अभी जो मैं पहले कमा रहा था वो भी कमाई मेरी हाफ हो गई. अब मैं एक दिन में बोलूँ यार मेरे पेशेंट नहीं आ रहे, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाऊंगा, तो फायदा नहीं है. सही बात. सी तो अभी हम लोग एक लेवल पे आ गए, हमने हमारा जो स्ट्रगलिंग फेज खत्म हो गया. अब जब आपका स्ट्रगलिंग फेज आया तब कोरोना आ गया, तो आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा. अब ये तुम सिर्फ नहीं तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है सिर्फ. थिंक अबाउट द पर्सन हु इज एवरीडे गोइंग वर्किंग एंड गेटिंग पेड. अब वो आप थिंक अबाउट द पर्सन हु इज लेसर देन यू. यस. जिसकी इनकम आपसे कम है, उसके बारे में सोचो कि वो कैसे कर रहा होगा. राइट. तब आपको और बुरा नहीं लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलीस्ट यू हैव डन योर बीडीएस, यू आर अ डॉक्टर, योर पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट यू. थिंक ऑफ द पुअर पीपल व्हाट दे आर डूइंग. जैसे मेरी काम वाली बाई हो गई, इधर पानी पूरी वाला हो गया, देन प्रेस वाला हो गया, टेलर हो गया. वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? राइट. उनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है. डेफिनेटली. कैसे वो लोग भाड़ा देंगे? अभी जैसे मेरे को सैलरी मिल रही है कॉलेज से, तो आई कैन पे माई कॉलेज रेंट, मेरा क्लिनिक का रेंट मैं अपने सैलरी से दे रहा हूँ. एटलीस्ट मेरा क्लिनिक में पेशेंट नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ से पैसे मैनेज कर दिए. थिंक अबाउट द पर्सन हु इज मेकिंग चाट ऑन द स्ट्रीट, पराठे बेचने वाला, छोले भटूरे बेचने वाला, छोटी मोटी दुकानें वाले, वो कैसे कर रहे होंगे? राइट. तो ये सबके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ऐसा ही चल रहा है. पूरा दुनिया का सिचुएशन ही ऐसा है. तो अभी ये ऐसा ही रहेगा पिछले अगले 6 महीने तक. 6 महीने तक बाद ये नॉर्मल होगा. तुम सिर्फ लॉस में नहीं है, पूरी दुनिया लॉस में है. राइट. इवन बड़ी बड़ी कंट्रीज का आधा दिवाला निकल चुका है कोविड की वजह से. सही बात है सर. तो अभी इतना खुश रहो कि तुम बचे हुए हो अभी तक, और तुमको कोविड हो गया, अभी तुम डेथ नहीं हुए हो या फिर कुछ बीमारी नहीं आई अभी तक. तो उससे खुश रहो, घर पे रहो. और ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. इतना आप जो घर पे रह रहे हो अपने फैमिली के साथ, दोबारा तो कभी आएगा ही नहीं. कभी नहीं आएगा सर. तो 100 साल तक नहीं आएगा. अगर कोई वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए तब तक तो नहीं आएगा, खुदा ना खास्ता ना हो. लेकिन ये जो टाइम मिला है इसको अपने स्किल्स को होन करने में, या फिर अपने स्किल्स को डेवलप करने में, या वेट लॉस करने में कुछ अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, ताकि बैठ बैठ के सोच के. अमेजिंग. दैट इज द ओनली थिंग. और ये जो सिचुएशन है ये अब ठीक हो जाएगी. टाइम सब कुछ हील कर देता है. टाइम हील्स एवरीथिंग. यस. विद टाइम कुछ ना कुछ वर्कआउट हो ही जाएगा अपने आप. थिंग्स विल फॉल इनटू योर प्लेस. सबका एक टाइम होता है. मेरा अभी टाइम चल रहा है, तुम्हारा भी टाइम नहीं चल रहा, तुम्हारा भी एक दिन टाइम, सबका एक ना एक दिन टाइम आता है. बिल्कुल बिल्कुल. जिस टाइम पे वो उठ जाता है ऊपर.
डेफिनेटली वो टाइम जब आएगा वो भगवान देखेगा कि अच्छा अब इसकी बहुत हो गया, इसका अब इसको उठा देते हैं, उठाया तो अपने आप आएगा वो टाइम सबका। definitely. Thank you so much for your time, sir. My voice is broken maybe, but Yeah, there is a lot of. I'll end this It was a now. very good live session with lot of people. Yes, yes. Thank you so much, sir. आपने time दिया अपना valuable. We'll do it again. Maybe people will We'll like it. do it again. I will. So you will tell something on clinical practice in next session, maybe after 10 to Definitely, 15 sir. days. Definitely, definitely. Okay, how to handle patients and all. So बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करेंगे थोड़ा दोबारा। ड्रीम जॉब था मेरा, आपके साथ काम करना है, वो वेटिंग फॉर इट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you very much. Thank you so Sagar, much. it was really like pleasure. Okay, sir. Thank you so Enjoyed much. a lot. Thank you so much, sir. Thank you so Thank much. you. Take care. Good night, sir. Good night, everyone. Thank you, sir. Thank you.